آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف نہ ہو کہ آسمانوں پر میرا نام عزازیل تھا۔ میں طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ مجھے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی میری صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب میرا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفت افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک، بلا روک ٹوک رسائی نے مجھے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں ادب و احترام کے کرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر میرے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہوگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا: اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی: اے عزازیل، یہ نہایت عابد، ذات برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اس ملعون مردود کردا کر رائندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے میں لرز اٹھا، میری زبان میں لڑکراہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا: اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا: وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلی سے آنے والے اس جواب سے میرا وجود کانپ اٹھا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سوچا آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال میری سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیت نے اس واقعے کو میری یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے میری ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب میں اپنی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر میرے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ میرے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب میری حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد مجھ میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی ہو: اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر روانیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے میری ہزارہ سالوں کی عبادتیں میرے منہ پر دے ماری۔ میں جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ مجھے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ شیطانہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب میں شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے میرا ذکر کر کے انسانوں کو مجھ سے دور رہنے اور میرے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو میرے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے میں نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی: تا قیامت موت سے مہلت، اہل زمین کو بہکانے کی قوت، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوق ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازا ہے، لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کے رگو پے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ گو کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرواؤں، چنانچہ میں ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنے وسوسہ اندازوں اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہوں۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند میرے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی شرک و تعلیم، کفر و فسق کو عبادت،
नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत और फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी इकदाम को फरसूदा, दीनी रवायात को कदामत पसंदी करार देकर शर्म व हया की चादर को तार तार कर देते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कर्राए अर्ज और आसमान पर दो किस्म की मखलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए यानी फरिश्ते, जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये जमीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया हूँ। जिस तरह इंसानों में हजरत आदम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह मेरे जद्दे अमजद तारानोस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मोहरिकीन ने उनका नाम मारज भी लिखा है। ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाकया है। मेरे वालिद का नाम चलीपा और अबुल गवी उनकी कुनियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारोब, बहादुर, कवि और नडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसलिए उसकी कौम ऐसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल हला देने वाला। मेरी माँ का नाम तबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी। जिन्नों की अक्सर सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिल दादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिन्नों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल ने मेरे बाप की ज़ेरे नगी हो गए। और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गरूर और तकब्बर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से जमीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फौज भेजी। जमीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन समेत ज्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समुद्र पार दूर दराज जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक जिन्नों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारों कतार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जिन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम खत्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो वो जमीन पर उतर आए। मैं नहायत हसीनो जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। चनाचे उन रहम दिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहां मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही के राज हाय सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाजत और इबादत में मसरूफ रहता। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबद कहा जाता था, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर आरफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे इज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लोहे महफूज पर इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और यह अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। एक दिन का वाकया है कि मैं हिफ्ते फलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब इसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये इसके पास से गुजरता तो इसे मारता, जिसकी वजह से
इस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। इब्लीस इस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम का नफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तो बड़ा इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, इन चीजों के नाम बताओ। और फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें जानता हूँ और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। मेरे तकब्बुर और रौनियत और बड़ाई ने मुझे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है? जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। वो बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी। और फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहकाऊंगा, इन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और पीछे से भी, उनके दाएं जानब से भी और बाएं जानब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और यूं बारगाहे खुदावंदी से दुत्कारे जाने के बाद मैं इज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बर और रौनत की बिना पर मेरी हजारों सालों की इबादत और रियाजत जाया हो गई और मुझे अर्श से फर्श पर पटक दिया। तो नाजरीन, ये था शैतान का तारफ का पहला पार्ट। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।